Assalamu alaikum. Good afternoon, students. Today we'll talk about electric potential due to a point charge in dipole. So first we'll talk about electric potential due to a point charge. So this is already known to you from your 12th class. So due to a point charge, electric potential symbol V is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Say you have a charge Q here. Observation point P is here at a distance R from this charge. Then the potential is this much. So inversely proportional to the distance. In comparison, electric field जो है, it is inversely proportional to square of distance. If we have E, it is Q by R square. For potential, it is Q by R. Now Q can be positive. If Q is positive, then V is also positive. So for positive charge, potential is positive, and for negative charge, potential is negative. So potential जो है, it is a scalar quantity, scalar, but it can be positive or negative depending on the charge. If charge is positive, potential will be positive, and if charge is negative, potential will be negative. Now we have what we call as superposition principle. Superposition principle. So this principle tells us if we have many charges, say we have charge Q1 here, charge Q2 here, charge Q3 here, and so on. There are other charges. Say these charges are at distance R1 from observation point P, Q2 is at a distance R2 from the observation point, Q3 is at a distance R3 from the observation point, and so on. Then what is the potential at the point P due to all these charges? Superposition principle tells us to write the potential due to Q1 as if other two were absent. तो हम मान के चलते हैं कि Q2 और Q3 नहीं है, तो हम Q1 potential निकालेंगे due to Q1, which we know is V1 is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R1. उस वक्त हम Q2 और Q3 को इग्नोर करेंगे. इस तरह हम V2 निकाल सकते हैं, हम और चार्जों को इग्नोर करेंगे. We know potential due to Q2 is 1 by 4 pi epsilon naught. यहाँ पर है Q1 by R1, यहाँ पर है Q2 by R2 and so on. अगर यहाँ पे n charges हैं, so this is Qn. So Vn potential due to nth charge will be 1 by 4 pi epsilon naught Qn by Rn. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये तो हमें पहले ही पता है, ये हमने पॉइंट यूजिंग पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल जो ऊपर हमने लिखी वो हमने यूज की. अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल पोटेंशियल एट पी एट पॉइंट पी इज V is equal to V1 plus V2 plus जितने भी चार्जेस हैं प्लस Vn, जिसको हम लिख सकते हैं V is summation of Vi's, where I range from 1 to n, जितने भी वहाँ चार्जेस हों. So this is in essence the superposition principle. Now इसमें एक और बात जो है, अगर हम इसको फिर Vi के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V is equal to summation of I range from 1 to n. Now V would be 1 by 4 pi epsilon naught Qi by Ri. इनफैक्ट हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught
summation of qi by ri. I range from 1 to n. So this is the superposition principle. अगर हम पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे, फॉर पॉइंट चार्जेस, now we can have for continuous charge distribution, for continuous charge distribution, उसका मतलब है कि अब चार्जेस जो हैं वो किसी लाइन पे ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, कंटिन्यूसली किसी लाइन पे चार्जेस हैं, जिसको हम लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से सिग्निफाई करते हैं dq by dl, which gives dq is equal to lambda dl. This is called as line charge density. या आपके पास किसी सरफेस पे चार्ज हो सकता है, से कोई सरफेस है, इस पे चार्ज फैला हुआ है, सो इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से पेश करते हैं dq by ds, which gives you dq is equal to sigma ds. इसी तरह चार्ज कहीं वॉल्यूम में हो सकता है, किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज हो सकता है, तो इसके लिए वहां चार्ज डेंसिटी है रो dq by dv, जिसे हम लिखते हैं, सो dq वहां पर जो है इट इज रो dv, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. उन केसों में जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल का, इट बिकम्स V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This summation changes to integration. Now Q becomes dq, this is a charge element, and r is the distance of the element from the observation point. So this is a formula for continuous charge distribution. Now let us do one or two examples on this. Say one example is, so let me write the example first. It is calculate electric potential at a point P due to a charge of 4 into 10 power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. So we have a charge Q is given here. इसका हम solution करते हैं, so इसका solution है Q is 4 into 10 power minus 7 coulomb, और डिस्टेंस जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वो 9 सेंटीमीटर है. इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 9 into 10 power minus 2 मीटर. तो वी हैव द फॉर्मूला, पोटेंशियल इज 1 by 4 pi epsilon naught, पॉइंट चार्ज है तो Q by R. सो 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. फिर चार्ज जो है इट इज 4 into 10 power minus 7, और डिस्टेंस नीचे है फॉर्मूला में, सो इट इज 9 into 10 power minus 2. So now we cancel, minus 2 will become plus 2 in the numerator, it will become 10 power 9 plus 2 minus 7, that is 10 power 4, और ये 4 भी इसके साथ है यहाँ पे, we show that 4 also here. So it is 4 into 10 power this, here it is 4 into 10 power 4 volt. We can write it as 4 followed by 4 zeros volt. This can be written as 40 kilovolt like this. So 40 kilovolt का पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, अगर हम कितने दूर पर ऑब्जर्व करें, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे. So very high potential. So small is a small charge producing a lot of potential, but if the observation point is close, अगर हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा. So
So let us take another example. This is on superposition principle. We have the question like this: 4-point charges are placed at the corners of a square of side L as shown in the figure. Calculate the potential at the center of the square. तो ये डायग्राम दी गई है. We have a square of side L. इस पर चार्ज हैं ऐसे Q, 3Q, ये चार्ज है यहाँ पे. इस तरह यहाँ पर चार्ज है 3Q, यहाँ पे चार्ज है -4Q और यहाँ पे चार्ज है -2Q. तो ये चार्ज है. तो इसके सॉल्यूशन पर हम आते हैं. सो इसका सॉल्यूशन जो है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सेंटर जो है वो इन चार्ज से कितना, क्योंकि सेंटर पे हमें चार्ज निकालना है. तो ये सेंटर है, तो ये आप डायगोनल डाल सकते हैं. ये दूसरा डायगोनल, तो जिससे सेंटर O. यहाँ पर आपको देखना है पोटेंशियल कितना है. पहले हम देखेंगे ये चार्ज इन स्क्वायर के वर्टिसेस से कितना दूर है. सो द चार्ज इज इक्विडिस्टेंट. पहली बात है, स्क्वायर का सेंटर जो है वो वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है. सो द चार्ज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम the center is equidistant from the vertices and hence the charges. तो वर्टिसेस से बराबर दूरी पर है सेंटर, इसलिए चार्जेस वहां पर हैं वर्टिसेस पे, तो इसलिए चार्जेस इक्विडिस्टेंट हैं. एंड लेट दैट बी कॉल्ड एज A. लेट दिस बी कॉल्ड A. नाउ A किसके बराबर है? इज 1/2 ऑफ डायगोनल. ये जो डायगोनल है, यहां से यहां तक डायगोनल है, ये डायगोनल है. तो जो हमारा ये डिस्टेंस A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है. तो ये डायगोनल का आधा है. अब डायगोनल कितना है? इट इज ये जो है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दिस डायगोनल इज रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये जो बनेगा, इट विल बिकम L/√2. सो A इज L/√2. अब चूंकि हर कोई चार्ज बराबर दूरी पर है सेंटर से, तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारा पोटेंशियल V है, देयरफॉर पोटेंशियल वुड बी 1/4πε0 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समेशन ऑफ Q/R या QI/RI. दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब इसमें 1/4πε0 Q1/A डिस्टेंस हर किसी के बराबर है, तो A को मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले लूंगा. Q1/A प्लस Q2/A प्लस Q3/A प्लस Q4/A. एक्चुअली इट इज Q1/A1, Q2/A2, Q3/A3. अब चूंकि हर किसी की डिस्टेंस बराबर, तो A जो है कॉमन डिनोमिनेटर आ गया. अब इसमें हम डालते हैं वैल्यूज. Q1 इज
अगर हम Q से शुरू करते हैं, फिर प्लस 3Q, फिर प्लस माइनस 4Q, फिर प्लस माइनस 2Q, इन चारों को ऐड करना है। A इज L डिवाइड बाई रूट 2। तो ये जो है 3Q and Q are positive, they are 4Q and minus 4Q will cancel, and what we are left with is minus 2Q, और ये बनेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रूट ऑफ 2 ऊपर आएगा और ये माइनस जो है उसको हम बाहर लिखेंगे। सो 2, ये वाला 2 जो है, एंड ये रूट 2 न्यूमरेटर में आएगा ऊपर, और ये Q और नीचे L, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम ये कांस्टेंट जो है इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे। सो राइट -2 रूट 2, ये तो अलग कांस्टेंट है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/L, तो ये इसका आंसर है। सो ये हमारा 2 एग्जाम्पल्स हमने इसमें सिंपली किया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये एक टॉपिक है जो हमने टॉपिक ऊपर दिया है कि हम इसमें करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक और पेज में ऐड करता हूं यहाँ पे। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। सो हमें डायपोल पता है क्या होता है। इफ वी हैव 2 चार्ज से माइनस एंड प्लस चार्ज से माइनस Q and plus Q, so we have 2 charges minus Q and plus Q separated by a distance of we usually use a symbol 2L. 2L is the distance between these 2 charges, and this is the center of dipole. Then we say it has got dipole moment P equal to Q into 2A. In fact, this dipole moment is a vector, and as a vector it is written as P is equal to Q into 2A, where this vector is from negative to positive charge. So we usually write this like this. So this is a dipole moment vector P. अब हम इसके लिए हमें एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक कैपिटल पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कैपिटल। तो हम चाहते हैं हम बताएं इस पॉइंट P पर इस डायपोल जिसके 2 चार्ज हैं माइनस Q प्लस Q, इन 2 चार्जों की वजह से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है। इसके लिए हम पॉइंट P की डिस्टेंस देखते हैं सेंटर से, सेंटर ऑफ डायपोल से। लेट दैट डिस्टेंस बी R. सो R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल having dipole moment P. So P is a representation of strength of dipole. P क्या आपको देता है कि strength, magnitude और strength of dipole. And we have this inclined at an angle theta with respect to P. So r theta में हमें चाहिए रिजल्ट कि पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है due to these 2 charges which form an electric dipole. तो इसके लिए हम पहले माइनस Q का पोटेंशियल देखते हैं, प्लस Q का पोटेंशियल देखते हैं, फिर उनका आपस में ऐड करते हैं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल इज we have V equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta by R square. तो ये आपकी फॉर्मूला है। सो ये R पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना दूर होंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। जितना दूर आप जाएंगे उतना आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, नजदीक होंगे तो पोटेंशियल, जितना दूर होंगे तो पोटेंशियल कम होगा, नजदीक होंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा। मगर उसके अलावा ये थीटा पर भी डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इतनी ही डिस्टेंस रखेंगे, आप दूसरी डायरेक्शन में डिस्टेंस इतनी ही, हम इस डायरेक्शन में आएंगे, तो ये भी R दूरी पर है ये पॉइंट। क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा? नो, बिकॉज यहाँ थीटा जो है वो डिफरेंट है और यहाँ थीटा जो है वो डिफरेंट है। तो अब अगर हम इफ थीटा इज फिक्स्ड और थीटा इज कांस्टेंट, थीटा इज, दैट मीन्स वी हैव अ फिक्स्ड डायरेक्शन,
फिक्स्ड डायरेक्शन, चाहे आप ये डायरेक्शन ले लो, ये डायरेक्शन ले लो, ये डायरेक्शन ले लो, डायरेक्शन को अगर आप फिक्स करेंगे तो cos थीटा कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में v जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दैट केस if theta is constant, that is for a fixed direction, v is inversely proportional to square of distance। अगर आप याद करेंगे जो फील्ड था, फील्ड ड्यू टू डायपोल, दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ एक पावर जो है वो ऐड हो गया। एनीवे, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। इसको हम दूसरे तरीकों में भी लिख सकते हैं। हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट है, इफ वी राइट p डॉट यूनिट वेक्टर r, where r is a unit vector in the direction of r, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इसको हम r यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं p डॉट r जो है इट इज इक्वल टू p यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ p, दैट इज p मैग्नीट्यूड ऑफ r, सिंस r इज यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। देन cos ऑफ थीटा, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड r, जो हमने यहाँ लिखा है p, और इस डायरेक्शन में r डायरेक्शन में एंगल थीटा है। सो p cos थीटा, p डॉट r इज p cos थीटा, तो हम p cos थीटा के लिए p डॉट r लिख सकते हैं। तो इस सूरत में हम लिख सकते हैं v इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r बाय r स्क्वायर। इट इज सेम थिंग। अब सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा और ओरिजिनल फॉर्म में ये इस फॉर्म में है p cos theta की फॉर्म में, but for p cos theta we can write p dot r which is the same. Now let us move to, we can write it special cases. Special cases हम लिखेंगे इसके special case। स्पेशल केसेस दो हैं। नंबर 1 है कि इफ point P, this observation point is on the axis of dipole। ये डायग्राम आप फिर देखिए, अगर आपका पॉइंट जो है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अगर हम ये जो ये है एक्सिस ऑफ डायपोल, ये अगर यहाँ पे ये पॉइंट P है तो थीटा कितना होगा। अब चूंकि P भी उसी डायरेक्शन में है, R भी उसी डायरेक्शन में है, इस केस में थीटा जो है वो 0 होगा या पाई होगा। आपका जो इस केस में ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सिस तो इस तरह भी जाता है, तो आपका अगर पॉइंट यहां होगा P तो थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इस केस में यूनिट वेक्टर इधर होगा तो ये एंगल 180 बनेगा। बट इन दोनों केसों में जो है cos ऑफ थीटा जो है दैट इज cos ऑफ 0 दैट इज 1 एंड cos ऑफ पाई इज -1, सो इट विल बी +-1। सो देयरफॉर इस केस में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जो होगा V ऑन एक्सिस ड्यू टू डायपोल वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा इज +-1 तो वो +- हम ऐसे लिखेंगे, देन P/r स्क्वायर। सो पोटेंशियल एक्सिस पर तो आपका ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया आपका एक्सिस, यहाँ पे चार्जेस हैं। तो अगर आप पॉजिटिव साइड में होंगे, इस तरफ होंगे, तो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इतना, और अगर आप नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगे यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ होगा, इस तरफ अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा तो यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव होगा, माइनस दिस होल थिंग। So this is the first special case. The second special case is if P is on the equatorial line or what we call is perpendicular bisector, perpendicular bisector यानी ये अगर हम ये वाला यहाँ पर दिखाएंगे, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया डायपोल का, ये लाइन वो चाहे इस तरफ या इस तरफ। इस केस में आपका जो डायपोल मोमेंट ऐसे है, वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर आर ऐसे होगा या नीचे की तरफ होगा। इन दोनों केसों में जो थीटा है दैट विल बी 90 एंड cos ऑफ थीटा इज cos ऑफ 90 is 0। देयरफॉर V ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वुड बी 0, तो इस तरफ 0 होगा पोटेंशियल। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो
ये पॉइंट जो होता है, जितना ये पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज से दूर होता है। इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पैदा करता है उतना नेगेटिव चार्ज भी पोटेंशियल पैदा करता है, और दोनों का पोटेंशियल बराबर है, मगर एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और नेट पोटेंशियल जो है वो जीरो है। इस परपेंडिकुलर बैकसेक्टर का दूसरा नाम हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन भी, हम इसी को इक्वेटोरियल लाइन, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं और वी ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। तो ये इसके स्पेशल केसेस हो गए। अब इस पोटेंशियल को दिखाने का एक और तरीका भी है, दिस वाज द सेकंड वे। ये पहला तरीका है, ये बेसिक फॉर्म है, और ये दूसरी फॉर्म है। अगर हम पी डॉट आर यूज करें, एक और फॉर्म हम दिखा सकते हैं। हमें पता है जो ग्रेडियंट है, ऑल्सो ग्रेडियंट ऑफ 1 by r इज माइनस यूनिट वेक्टर r by r स्क्वायर। हमने ये कैलकुलस जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें किया है। सो दिस इज माइनस यूनिट वेक्टर r by r स्क्वायर। तो इसमें अगर हम यहां पे ये जो है इसके लिए r by r स्क्वायर, इसके लिए हम ग्रेडियंट ऑफ 1 by r यूज करें तो ये फॉर्म और सिंपलीफाई होगी। सो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल 1 by 4 pi epsilon नॉट p डॉट। तो अब यूनिट वेक्टर r by r स्क्वायर जो है इसके लिए लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ 1 by r, और ये माइनस यहां पर है तो ये माइनस हम यहां पर लाएंगे। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म में है पोटेंशियल। सो यू हैव थ्री फॉर्म्स फॉर दिस, यू कैन पुट देम लाइक दिस। सो दिस इज द बेसिक फॉर्म, दिस इज द बेसिक फॉर्म। ये दूसरी फॉर्म है आपकी फॉर पोटेंशियल, और ये तीसरी फॉर्म है फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ये डॉट प्रोडक्ट में है और ये है डॉट प्रोडक्ट में भी है, मगर यहाँ पर हमने डाइवर्जेंस ऑफ 1 by ग्रेडियंट ऑफ 1 by r का यूज किया है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।